शनिवार को आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित तृणमूल भवन में भाजपा की पूर्व जिला सचिव सुधा देवी और पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सुदीप चौधरी सहित अन्य दलों के कई कार्यकर्ता और नेता आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मुलाय घटक के नेतृत्व में टीएमसी में शामिल हो गए। इस मौके पर अभिजीत घटक, गुरुदास चैटर्जी जैसे कद्दावर नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मुलाय घटक ने कहा कि भाजपा ने कभी भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दिया है। मुलाय घटक ने कहा कि कभी शिल्पांचल में भाजपा की कमान संभालने वाले नेताओं ने सिर्फ इसलिए टीएमसी का दामन थाम लिया क्योंकि भाजपा के आला नेतृत्व ने कभी उनको उचित सम्मान नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी द्वारा पूरे राज्य के साथ साथ शिल्पांचल में किए गए विकास से प्रभावित होकर भी इन नेताओं ने टीएमसी में शामिल होने का फैसला लिया। वहीं सुधा देवी और सुदीप चौधरी ने कहा कि उनको वो उचित सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। सुधा देवी और सुदीप चौधरी दोनों ने ही ये आरोप लगाया कि शिल्पांचल भाजपा चंद लोगों के कब्जे में है और ये वही लोग हैं जो भाजपा के सभी गतिविधियों को निर्धारित कर रहे हैं। विदित हो कि सुधा देवी को भाजपा की जिला सचिव तो वहीं सुदीप चौधरी को इस बार भाजपा की तरफ से नगर निगम चुनाव के लिए टिकट दिया गया था, लेकिन अपने पसंदीदा वार्ड से टिकट ना मिलने से नाराज सुदीप चौधरी ने आज टीएमसी में शामिल होने का फैसला लिया। ये प्रोग्राम সেই প্রোগ্রামে আসানসোলের বিজেপির পরিচিত নেতা যারা বিজেপির দায়িত্বে আজকে পর্যন্ত ছিলেন তারা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়ন, তার যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে আকৃষ্ট হয়ে তারা আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তারা ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সামনে তাদের বক্তব্য রেখেছেন। যারা যোগদান করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুদীপ চৌধুরী, তিনি এই ব্লকের প্রেসিডেন্ট, বিজেপির ব্লকের প্রেসিডেন্ট, মন্ডল প্রেসিডেন্ট, তিনি আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। সুধা যাদব, তিনি ডিস্ট্রিক্টের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন বিজেপির। এছাড়া স্বপ্না মুখার্জি, তিনি মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট এই ব্লকের মন্ডল আমরা ব্লক ওরা মন্ডল বলি, এই ব্লকের বা মন্ডলের তিনি মহিলা প্রেসিডেন্ট। সুতরাং ব্লকের প্রেসিডেন্ট, ব্লকের মহিলা প্রেসিডেন্ট দুজনেই আজকে বিজেপি ছেড়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। এছাড়া তনুজা সিনহা, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, তিনিও আজকে যোগদান করছেন। এছাড়া আরও অনেকে রয়েছে যারা নাম হচ্ছে জয়প্রকাশ কেশরী, তিনি বুথের প্রেসিডেন্ট 46-এর। আমি নই, এখন আমি মন থেকে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আজ থেকে কাজ করার শপথ অলরেডি নিয়ে নিয়েছি। দাদার হাতে আমাদের মন্ত্রী সাহেব মাননীয় মলয়দা যেভাবে আসানসোলের উন্নয়ন করেছে তার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে তার সাথে চলে আমি আসানসোলের জনতার উন্নতি করতে চাই। তার আগে আপনাদের সকলকে বলবো আজকে এই বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কি। আমরা দীর্ঘ 14 বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি করেছি এবং 6 বছর ধরে সংগঠনের কাজ করেছি। 20 বছর আমি আমার জীবনের এই সংগঠনের জন্য দিয়েছিলাম। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তর বিধানসভা যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট, কখনো জেলার যুব মোর্চার জিএস, আজকে ব্লকের সভাপতি, বড় বড় দায়িত্ব নিয়েছি। যে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা করেছিলাম সেই ভারতীয় জনতা পার্টি 2021 সালে আমরা যখন নির্বাচন এলো তখন আমরা বুঝে গেলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে আদর্শ নিয়ে চলে সেটা খালি দেখানোর জন্য, আসলে আদর্শ কিছুই নয়। এই আদর্শকে বেচে প্রভু শ্রীরামকে বেচে, খালি প্রভু শ্রীরামকে বেচে এই ভারতীয় জনতা পার্টি পয়সা কামাবার জায়গা হয়ে গেছে, তাছাড়া আর কিছুই নয়। 2021 সালে যেরকম মদনদা বলেছে, সত্যি সত্যি যোগ্য নেতৃত্বকে ছেড়ে পয়সা এবং নারীতে বিক্রি হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সম্পূর্ণরূপে বিক্রি হয়ে গেছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তো পাওয়ারে আসার জন্য এসব করছে, কিন্তু তারপর
जिनके सामने खड़े होने से साधारण लोग डरते हैं, वो क्या संगठन करेंगे? संगठन करने के लिए पहले इंसान से सबके साथ एक लगाव, एक प्यार, एक भाईचारा बनाना पड़ता है। आप बंदूक लेके चलेंगे तो आपसे कौन बात करने जाएगा भाई? तब तक लोग आपसे 4 कदम दूर जाएंगे, अरे भाई तो चारों तरफ बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं। और ऐसे लोगों की गुलामी मैं हो गई, मेरा भाई सुदीप हो गया, सपना दी हो गई, तनुजा बहन हो गई, बाकी और बहनें हैं। मुझे बहुत शर्म लग रहा है ये बताने में, एक औरत होते हुए, कि मदन भैया ने अभी कहा कि 2021 का चुनाव बोतल और होटल में बिक गया। ये 100% सही है। जिन महिलाओं ने समर्पण किया हर तरह का, वो आगे बढ़ गए, लेकिन वो समर्पण हम लोग नहीं कर पाए। तो आज भी 8 साल 8.5 साल के बाद भी वहीं खड़े हैं और अपने ही पार्टी के। आसनसोल नगर निगम के 93 नंबर वार्ड पर भाजपा ने दिनेश सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज दिनेश सोनी के पक्ष में प्रचार करने के लिए सालतोड़ा की भाजपा विधायक चंदना बावरी विशेष रूप से रानीगंज पहुंची। उन्होंने यहां पिछले विधानसभा चुनाव में रानीगंज से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर पिजन मुखर्जी के साथ मिलकर 93 नंबर वार्ड में दिनेश सोनी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इस मौके पर 93 नंबर वार्ड के भाजपा कर्मियों एवं स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ चंदना बावरी का फूलों की माला से स्वागत किया। लोगों की इतनी अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए दिनेश सोनी भी बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले नगर निगम चुनाव में सिर्फ 93 नंबर वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे आसनसोल नगर निगम में भाजपा को बहुमत मिलेगी और वो इस बार आसनसोल नगर निगम में बोर्ड बनाने में सफल होंगी। इस संदर्भ में जब हमने सालतोड़ा के विधायक चंदना बावरी से बात की तो उन्होंने कहा कि आज वो पहली बार 93 नंबर वार्ड के हलदार बांध इलाके में प्रचार में आई है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर और इस इलाके में प्रचार करके उन्होंने देखा कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक तालाब है जिस तालाब का पानी भी गंदा है, लेकिन लोग उसी तालाब के पानी से अपने रोज़मर्रा की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने को बाध्य है। चंदना बावरी ने का कहना है कि इस वक्त पूरे देश के साथ साथ बंगाल में भी कोरोना का कहर बरपा हुआ है। ऐसे में अगर लोगों को ऐसी गंदगी में रहने को मजबूर होना पड़े तो लोग और ज़्यादा बीमार होंगे। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। देखिए ये दादा के साथ में आज पहली बार प्रचार में आया इधर। আমি इधर আজকেই প্রথম এসেছি প্রচারে এখানে, তো দাদার সমর্থনে এসেছি 93 নম্বর ওয়ার্ডে। यहाँ के स्थानीय लोग से क्या उम्मीद रख रहे हैं? দেখুন এখানে ওয়ার্ডের যে পরিস্থিতি দেখছি চারদিকে খুব নোংরা এখনো পর্যন্ত। আমরা বলছি যে এগিয়ে বাংলা, কিন্তু দেখুন চারদিকে এখনো পর্যন্ত ড্রেনে যেভাবে নোংরা রয়েছে, এখানে বস্তির যে মানুষজন রয়েছেন ওনারাও মানুষ। একটা পুকুর দেখলাম এখানে, পুকুরটার জলটা এত নোংরা, ওখানে অনেকেই স্নান করছেন এবং জামা কাপড় কাচ্ছেন। তো এতে করে তো এমনিতেই আমাদের 2 বছর ধরে ধরুন এখানে পশ্চিমবঙ্গে ভাইরাস আছে, করোনা ভাইরাস পশ্চিমবঙ্গে ছাড়া গোটা ভারতবর্ষেই আছে। তো এই সব নোংরা জলে চান করে বা বাসন মাজা থেকে শুরু করে কাপড় কাচার পর যে সব নোংরাগুলো আবার সেগুলো রিপিট হচ্ছে, তার ফলে মানুষ অসুস্থ তো হবে কি। এই সব কাজকর্মগুলো আমাদের দাদাকে অবশ্যই বলবো, অনুরোধ করবো ওনাকে এই সব কাজগুলো উনি দেখবেন। ড্রেন পরিষ্কার বা চারিদিকে যাতে পরিষ্কার থাকে, এই সবগুলোই আমার দাদাকে আমি রিকোয়েস্ট করবো, আমি যেগুলো দেখে যাচ্ছি। আমার নাম চন্দনা বাওয়ারি, সালতোড়া বিধানসভার বিধায়ক। हाँ? 93 नंबर वार्ड में किस तरह प्रचार? प्रचार देखिए, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी बोल करके गए थे कि केवल डोर टू डोर पे ध्यान है और हमारा पूरी तरह से डोर टू डोर पे ध्यान है। और आज मेरे समर्थन में सालतोड़ा की विधायिका हमारी बहन चंदना बावरी जी आज यहाँ आई है हलदार बांध में, और पूरा डोर टू डोर हमारा जोर शोर से प्रचार चल रहा है।
बराकर कल्याणेश्वरी रोड स्थित पिंजरापोल सोसाइटी के गोधाम गौशाला में मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति चतुर्थ वर्ष तुलादान का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रातःकालीन धर्म प्रेमियों की ओर से बराकर नदी में स्नान कर गरीब को दान के साथ गौ माता की पूजा अर्चना किया गया। वहीं भक्तों द्वारा गौशाला में तुलादान कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सभी गौ भक्तों ने अपने शरीर के वजन के बराबर गौ माता का चारा, गुड़, चोकर, खली, बेसन, तेल, चुन्नी पिंजरापोल सोसाइटी को गाय के लिए लगभग 40 लोगों ने दान किया। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए सभी दलों के प्रत्याशी जोरों शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में 33 नंबर वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार शीलानंदन झा ने भी आज चुनाव प्रचार किया। कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए उनके साथ चंद लोग ही मौजूद थे। शीलानंदन झा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। शीलानंदन झा ने कहा कि अब तक शिल्पांचल के लोगों ने माकपा और टीएमसी के हाथों में आसनसोल नगर निगम बोर्ड को देकर देखा है। अब समय आ गया है कि वो कांग्रेस को भी आजमाए। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण वो यहां से पार्षद बनने के बाद जरूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने लोगों से 22 जनवरी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पड़ा है और रानीसर के आसपास जो इलाका है उसमें किए। प्रचार के दौरान क्या प्रभाव मिल रहा है स्थानीय लोग से? स्थानीय लोग से अपना कंप्लेन शिकायत सुना रहे हैं और हम लोग को बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, हम लोग को दूर करने का आश्वासन दीजिए तो हम लोग वोट देंगे। पानी का काफ़ी ज़्यादा शिकायत है और कुछ इलाका में तो नाली है ही नहीं, वो तो बोल ही रहे हैं बार बार। ड्रेनेज सिस्टम कुछ इलाका में बिल्कुल डल है ही नहीं, कच्चा नाली है। और पानी का शिकायत सबसे ज़्यादा है वो हर एरिया में है कि कहीं एक टाइम आ रहा है, कहीं आ ही नहीं रहा है। क्या लगता है कोई माथा पे ढोके ला रहा है? इससे पहले जो काउंसिलर था कुछ काम नहीं किया, उनका काम दिख नहीं रहा। वो दावे तो बहुत बड़ा बड़ा करते होंगे लेकिन उनका काम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, एकदम जीरो दिख रहा है। हर इलाका में काउंसिलर से जुड़ा हुआ समस्या इतना ज़्यादा है कि हम लोग सुन सुन के थक जा रहे हैं। आपके आने के बाद क्या स्टेप रहेगा इस इलाका पे? मेरा आने के बाद ये जो मूलभूत सुविधा है, पानी, नाली, सड़क, इसको पूरा बढ़िया किया जाएगा। आपको पक्ष शीलानंदन झा, वार्ड नंबर 33, कांग्रेस पार्टी। रानीगंज के बरखयात समाज सेवी मोहम्मद सनी के जन्मदिन के अवसर पर राजबांध के स्थानीय निवासियों ने केक काटे और क्या महिला क्या पुरुष सभी के चेहरों पर मोहम्मद सनी की जन्मदिन की खुशियां साफ झलक रही थी। इस इलाके के नौजवानों में मोहम्मद सनी के जन्मदिन को लेकर एक अलग ही उत्साह था। समाज के हर वर्ग के लोगों ने आकर मोहम्मद सनी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। इनमें टीएमसी के तमाम स्थानीय नेता भी शामिल थे। इन सभी ने मोहम्मद सनी को उनके जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। मोहम्मद सनी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर करीब 500 गरीब ज़रूरतमंदों को भोजन करवाया। वहीं मोहम्मद सनी ने गरीब ज़रूरतमंदों को कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मोहम्मद सनी ने कहा कि इन दिनों चूँकि पूरे राज्य में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्होंने आज के कार्यक्रम के दौरान लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। आज राजाबन में क्या कार्यक्रम किए आप लोग? आज 14 जनवरी मेरे राजाबन के सनी भाई की तरफ से बर्थडे पार्टी दिया गया है, जो कि तमाम राजाबन के आदमी को दावत दिया गया है। इसमें कोई भी गैर कौम सब मतलब मिले जुले हुए सब आए हुए दावत खाने के लिए। सनी भाई की तरफ से तमाम
आवाम को तरफ से दावत है सनी भाई। इनका आज बर्थडे है, सनी भाई का सनी भाई का बर्थडे है, तो आप लोग कितना खुशी महसूस हो रहा है, क्या कर रहे बहुत हैं ही आप लोग? खुशी, आज इतना खुशी महसूस हो रहा है, भाई का बर्थडे है, जितना खुशी बता नहीं सकते। आवाम के तरफ से देखिए आप, आज बर्थडे के मौके में क्या क्या कार्यक्रम किए आज? बर्थडे का मौका पे आज मास्क जनता के बीच में वितरण किए और सैनिटाइजर और खाना के इंतजाम किए गए सनी भाई की तरफ से, लंगर किया गया। लंगर किया गया। आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी मुखर्जी के समर्थन में प्रचार करने के लिए आज पश्चिम बंगाल भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष तनुजा चक्रवर्ती 88 नंबर वार्ड पहुंची। उन्होंने सुमित मुखर्जी के समर्थन में प्रचार किया। इस संदर्भ में जब हमने तनुजा चक्रवर्ती से बात की तो उन्होंने कहा कि आज प्रचार के दौरान उनको जनता से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यहां की जनता आने वाले नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुमित मुखर्जी के पक्ष में मतदान करेगी। इसके साथ ही तनुजा चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य सरकार यहां की महिलाओं को वर्गलाने का काम कर रही है। सिर्फ 500 देकर वो यहां की महिलाओं को अपनी तरफ करना चाहती है। तनुजा चक्रवर्ती ने कहा कि 500 से कुछ नहीं होता है, असली चीज है स्वनिर्भर बनाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर युवक युवती को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और इसी लक्ष्य में भाजपा का हर कार्यकर्ता भी लोगों तक जा रहा है और उनको भाजपा की नीतियों के बारे में समझा रहा है। तनुजा चक्रवर्ती ने कहा कि भाजपा हमेशा से ही प्रचार में रही है और नगर निगम चुनाव को देखते हुए अलग से प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने 88 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी सुमित मुखर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस वार्ड में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। साथ ही उन्होंने गंदगी को भी यहाँ की एक प्रमुख समस्या के तौर पर बताया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के पूर्व पार्षद थे, उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, यही वजह है कि उनको यहाँ से हटा दिया गया है और एक नए चेहरे को मौका दिया गया है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि आम जनता समझदार हो चुकी है और आने वाले चुनाव में वो टीएमसी से पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड मांगेगी और उसके आधार पर ही मतदान करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता का आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा। দেখুন, ভাজপার প্রচার চিরকালই ছিল। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা আমাদের প্রচার চালিয়েই যাচ্ছি। বরং এই যে হাইকোর্টের রায়টা আমাদের খুব মনে হলো ভালো, কারণ আরও বেশি সুমতি এগিয়ে যেতে, শুধু 88 নম্বর নয়, সব ওয়ার্ডেই আমরা আরও বেশি মানুষের কাছে কন্ট্যাক্ট করতে পারবো। কারণ মানুষকে জানানো দরকার যে 500 টাকায় কখনো কোনো কিছু সুরাহা হবে না। আর চপমুড়িটাই আমাদের ভবিষ্যৎ নয়, আমাদের আগামী দিনের যে ভবিষ্যৎটা, যে পার ডে 16 টাকা 66 পয়সা দিয়ে একজন মহিলা নিলেও তার যে ছেলে মেয়েদের কর্মসংস্থানটা যে আগে জরুরি, সেই স্বনির্ভরতাটা আমরা চাইছি। আমরা মোদিজির আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এগোচ্ছি এবং তাই জন্য প্রতিটি ছেলে মেয়ে, প্রতিটি বাড়ির যাতে কোনো বেকার না থাকে, তাদের যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, এটাই আমাদের লক্ষ্য। प्रचार के दौरान स्थानीय लोग से क्या प्रभाव मिल रहा है? না, স্থানীয় লোক যেভাবে অভ্যর্থনা করছেন আমাদের কাছে ভীষণ ভালো লাগছে এবং তাদের খুবই আমরা আশাবাদী যে তারা ভারতীয় জনতা পার্টির সুমতিকে খুব ভালোভাবে মেনে নিয়েছেন। আপনার নাম? আমার নাম তনুজা চক্রবর্তী, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ মহিলা মোর্চার সভাপতি। প্রত্যেকটা বাড়িতে যাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা বাড়ির ম্যান টু ম্যান কন্ট্যাক্ট করছি এবং যাতে তারা মানে বিগত 5 বছরে কী কী কাজ হয়েছে এবং কী কী কাজ হয়নি সেগুলোর প্রত্যেকটা জিনিসের হিসাব আমরা কিন্তু জনগণ এবারে ভোটে দেব। प्रचार के दौरान कुछ समस्या लोगों को अब तक का पहुंचाया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है यहाँ की समस्या को लेकर? যেমন প্রত্যেকটা বাড়ির কাছে ড্রেন হয়নি, প্রত্যেকটা মানুষ মোদিজি বাড়ি দিলেও এখানে বাড়ি পায়নি এবং কলের জল এবং যে ড্রেনেজের একটা সমস্যা, বর্ষাকালে বাড়িতে যে জল ঢুকে যায়, এই সমস্যাটা প্রত্যেকটা বুথে রয়েছে এবং আমি প্রত্যেকটা বুথে এই সমস্যাটা নিয়েই যাচ্ছি। पहले इस 88 नंबर वार्ड पर टीएमसी के काउंसिलर थी, क्या लगता है कि वो काम अधूरा रखता है? হ্যাঁ, কাম অধুরা রেখেছিল বলেই তো নতুন মুখকে নিয়ে আসতে হয়েছে, নইলে তো আগের কাউন্সিলরই টিকিট পেতো না। তো সেই জন্যই তাকে টিকিট না দিয়ে অন্য নতুন মুখকে নিয়ে আসা হয়েছে। আপনার পরিচয়? আমার নাম সুমতি মুখার্জি। उम्मीदवार কোন ওয়ার্ড? আমি 88 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রত্যাশী সুমতি মুখার্জি।